Hello kids, welcome back. You know what? Today I am very upset. Why? Because today I ordered a pizza. But you know what? I have to share that pizza with my brothers also. Now what happened? There's a one pizza. मैंने तो एक पिज्जा ऑर्डर किया है ना. I have ordered a one pizza. But how I will share this pizza with 4 people? How I will share this pizza among 4 people? अब 4 लोगों में मैं ये पिज्जा कैसे शेयर करूं? मुझे तो आता नहीं, इसीलिए मैं बहुत अपसेट हूँ. एक तो पिज्जा ऑर्डर किया, ऊपर से अब मैं उसे खा भी नहीं सकती. I have to share it, but I don't know how to share it. Okay, I got an idea. So what if I divide it into one equal part? I mean 2 equal part obviously. What if I divide it by drawing one line and divide this pizza between 2 equal parts? Okay. Now अच्छा, अब तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बट अभी भी मुझे इसे 2 मोर पार्ट्स में डिवाइड करना है. क्या करूं? Okay, so now I can draw a line like this also. See what happened here? Now I am having 4 equal parts of pizza. Now I am having 4 equal parts of pizza. See, part 1, I'll eat this. Part 2, I'll give this part to my friend. Part 3, I'll give this part to one of my brother. And I'll give this part to my younger brother. Okay, now so what I'm trying to tell you is this. You might be wondering why ma'am is talking about pizza today. Is this a cookery class or what? No, this is not a cookery class, but this is your maths class. But maths is very much associated with your real life. Not very much. Maths is exact replica of your real life, है ना. मैथ्स क्या है? एग्जैक्ट रेप्लिका है आपकी रियल लाइफ का. In our previous chapter, what we have learned? In our previous chapter, we have learned how to divide a number, how to divide a given number with one number. ठीक है, हमने सीखा कि कैसे हम एक दिए हुए नंबर को एक दूसरे नंबर से what we can do, we can divide. Today what we will learn? Today we will learn about dividing a whole. Okay, no, whole means यहाँ वो छेद वाला whole नहीं. Whole means complete वाला whole. This whole, ये वाला होल भाई, WHOLE वाला होल. HOLE वाला होल नहीं. छेद को नहीं डिवाइड करना, एक पूरे को डिवाइड करना है. अच्छा, so today we will read about chapter 7 fractions. Today we will read chapter 7 fractions. Okay, so now you might be wondering why ma'am has given example of pizza here. See, I have given example of pizza because that you guys love too much, है ना. पिज्जा तो सबको बहुत पसंद है. पिज्जा लॉकडाउन में तो पिज्जा कैसे खा रहे हो? मम्मा घर पे बना रही क्या, है ना. तो क्या हुआ, पिज्जा तो हम सबको बहुत पसंद है, बट पिज्जा के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वी हैव टू शेयर द पिज्जा, है ना. पिज्जा हमें क्या करना होता है? शेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक बिग होल बड़ा सा गोला सा पिज्जा आता है और उसे हमें क्या करना होता है? शेयर करना. तो लेट अस ड्रॉ पिक्चर ऑफ पिज्जा फर्स्ट. चलो एक अच्छी सी पिक्चर बनाए पिज्जा की, है ना. सो दिस इज अवर पिज्जा, है ना. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? देखो, फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? फ्रैक्शंस मीन पार्ट ऑफ अ होल. किसी होल का मतलब एक पूरे का एक हिस्सा, पूरे का एक हिस्सा या जितने हिस्से हम करना चाहें, बट द पार्ट शुड बी इक्वल.
So a fraction represent a part of a whole or a group. Okay, so a fraction represents part of a whole. मतलब एक पूरे ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा अगर हम निकाल दें तो हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं. फ्रैक्शन मीन्स एक कोई कंप्लीट चीज है. जैसे हमारा ये पिज्जा एक कंप्लीट है, ये एक पूरा एक पिज्जा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हमें इक्वल डिवाइड करना है ना, इक्वल डिवाइड करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, देन वी विल ड्रॉ दिस लाइन. ओके, नाउ हियर आई एम हैविंग 1 part, 2 part, 3 part, and now 4th part. This is 4th part. Okay, so read the board again. A fraction represents part of a whole. Fraction represent part of a fraction represent part of a whole. Okay, so किया क्या हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट लिया और उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, है ना. नाउ सो अच्छा, कभी कभी क्या होता होगा, यू हैव टू गिव हाफ ऑफ समथिंग टू योर ब्रदर और सिस्टर, है ना. कभी कभी क्या होता होगा, किसी चीज का हाफ आपको अपने ब्रदर या सिस्टर को देना पड़ता होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वी कैन टेक एज एग्जाम्पल, लाइक सपोज ये एक ग्लास है और इसमें क्या हमने रखा है, इसमें हमने रसना रखा है, रसना या कोल्ड ड्रिंक रखा है. ठीक है, चलो ये अब पूरा फिल है. अब रसना तो हमारा इसमें पूरा फिल है, बट आपके भाई ने बोला कि भाई मुझे भी दो. वो आपसे लड़ाई करने लगा कि मुझे भी हाफ दो. कितना दो, हाफ दो. हाफ मीन्स व्हाट, मुझे कितना दो, आधा दो, आधा मुझे दो. वो इस बात पे एकदम लड़ाई करने लगा. तो आपने क्या किया, आपने एक सेकेंड ग्लास ली और उसमें क्या किया, हाफ रसना दे दिया. आपने उसको हाफ रसना दे दिया. ठीक है, आपने अपने भाई को कितना रसना दिया, हाफ रसना आपने अपने भाई को दे दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट था, इसका हमने हाफ कह दिया. मैम बार बार कौन सा टर्म बोल रही है, हाफ. कौन सा टर्म, हाफ. ओके, मैम बोल रही है बार बार हाफ. So half means what? Half means 1/2. ठीक है, 1/2. अभी मैम इसको समझाएंगे, हाफ को तो अभी मैम समझाएंगे, बट उससे पहले जरूरी है हमारा ये समझना कि भाई ये 1 क्या है और ये 2 क्या है. अब ये तो नहीं आता, अब ये तो आता भी नहीं है कि 1 क्या है, अब ये 2 क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. डिवाइड तक आपने पढ़ाया, डिवाइड तक तो हमें समझ में आया, लेकिन ये क्या आप पढ़ा रहे हो, फ्रैक्शन, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा. डोंट वरी, मैम विल हेल्प यू. सी, देखो पहले मैं अब आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हम डिनोट कैसे करते हैं. पहले हम कोई एक नंबर लेते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं. ठीक है, देखो अब फ्रैक्शन, सपोज करो एक कोई नंबर हमने लिया 2/3. फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करते हैं, अपॉन दिस लाइन, इस लाइन को हम अपॉन बोल देते हैं, और 2/3, 2/3. ठीक है, इस तरह भी. ओके, नाउ अ
फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट. फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं. ओके, सो a fraction has 2 parts. Okay, a fraction has 2 parts. अब भाई देखो, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज न्यूमरेटर. ओके, एंड सेकेंड इज डिनोमिनेटर. कूल. फ्रैक्शन में जो नंबर, अभी ये सिंपल समझने के लिए मैं बता रही हूं, फ्रैक्शन में जो नंबर हम इस बेस लाइन के, मान लो ये एक लाइन है, जो नंबर हम इसके ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है? न्यूमरेटर. मैम के साथ बोलो, न्यूमरेटर. सारे बच्चे बोलेंगे न्यूमरेटर. जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं वो क्या कहलाता है? वो नंबर कहलाता है न्यूमरेटर. ठीक है, लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर जो नंबर हमने लिखा दैट इज न्यूमरेटर. ठीक है, नाउ दिस 2 इज व्हाट? I mean the number written below is what? Denominator. Okay, the number written below is called denominator. ठीक है, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो समझ में आ गया. ठीक है, अच्छा भाई, अब ये न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? वेरी मच पजल्ड है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो नंबर लाइन के ऊपर लिखा है, ठीक है, जो नंबर लाइन के ऊपर लिखा है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं. जो नंबर लाइन के नीचे लिखा है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते क्या हैं. अपार्ट फ्रॉम ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते क्या है? चलो समझते हैं. So let us read this once again. A fraction has 2 parts. A fraction has 2 parts. First one is numerator and the other one is denominator. First one is numerator and the second one is denominator. ठीक है, what is numerator? The number written above the baseline is numerator and the number written below of it is denominator. कैसे याद करेंगे numerator denominator? How we are going to recognize? अभी एग्जाम में भूल गए तो भाई न्यूमरेटर कौन सा था, डिनोमिनेटर कौन सा था, नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो. अच्छा हाँ, एक ट्रिक है. ठीक है, उससे देखते हैं. देखो, D is what? D for down, है ना? डाउन मीन्स नीचे. D for डाउन, डाउन मीन्स नीचे. बस अब इसी D को हमें याद रखना है और इस D को, डिनोमिनेटर वाले D को, जैसे डाउन मीन्स नीचे उसी तरह डिनोमिनेटर वाला D भी, I mean डिनोमिनेटर वाला नंबर भी हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? We will always write डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे. We will always write डिनोमिनेटर वाला नंबर. where we will write डिनोमिनेटर वाला नंबर? we will write डिनोमिनेटर वाला नंबर always we will write नीचे, है ना? बेस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर. why we will write डिनोमिनेटर below? because D for down means नीचे and D for denominator and that's why we will write denominator, always we will write denominator नीचे. okay, read the whole thing that is written on the board. चलो सारे बच्चे रीड करो, जो भी चीजें लिखी हैं उसको रीड करिए सारे बच्चे. क्या लिखा है? A fraction has 2 parts, numerator and denominator. The part written above the line is
numerator and the part written below the line is denominator. Cool? हो गया इतना सभी बच्चों का रेडी हो गया. अब मैम आगे चले. अब मैम समझाएं कि हमारे पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया कहाँ से है. चलो ठीक है. मैम इज गोइंग टू इरेज द बोर्ड. Okay. So मैम was telling about numerator and denominator, है ना. मैम was telling you about numerator and denominator. अच्छा चलो समझते हैं न्यूमरेटर कहाँ से आया, डिनोमिनेटर कहाँ से आया. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. सो लेट अस ड्रॉ अ होल. एक कोई फिगर बनाते हैं, फिर हम बात करते हैं. ठीक है. सो हियर मैम इज गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ठीक है. ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे. दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फिगर. विच फिगर इज दिस? रेक्टेंगुलर फिगर. दिस इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो दिस, अच्छा देखो अब फिर से मैं बोल रही हूँ व्हाट इज अ फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन क्या होता है? एक होल का, एक पूरे का एक पार्ट होता है. ठीक है. फ्रैक्शन क्या होता है? एक पूरे का एक पार्ट होता है. नाउ अब ये हमारे पास एक पूरा एक फिगर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड डिनोमिनेटर. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर समझेंगे. सो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड. सो द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच अ होल इज डिवाइडेड. दिस इज अ होल. एक होल फिगर है. डिनोमिनेटर क्या होता है? कितने पार्ट्स में हमने एक होल को डिवाइड कर दिया. वो टोटल पार्ट जितने में हम एक होल को डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर. ठीक है. फिर से समझो. डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट? वो जितने पार्ट में हम एक होल को डिवाइड करते हैं. डिवाइड मतलब ऐसा वो डिवाइड वाला डिवाइड नहीं, बांटते हैं. जैसे सपोज करो दिस इज अ बिस्किट. अब भाई इतनी बड़ी बिस्किट नहीं होती, आई नो, बट एज्यूम इट. दिस इज अ बिस्किट, दिस इज अ ब्रेड. ठीक है. रेक्टेंगुलर एनीथिंग. एंड आपने क्या किया? आपने इसको डिवाइड किया, है ना. आपने क्या किया? इसको डिवाइड किया इनटू टू इक्वल, सॉरी, आपने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है. तो जितने पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे दैट इज व्हाट, दैट इज योर डिनोमिनेटर. ठीक है. चलो देखते हैं. सो मैम इज गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है. एंड ऑलवेज इक्वल पार्ट्स. ठीक है. सो फर्स्ट आई ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, देन आई ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन. ठीक है. नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस गिवन रेक्टेंगल इनटू 4 पार्ट. ठीक है. मैंने ये गिवन रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. भाई देखो अब इसको 4 पार्ट में मैम ने डिवाइड तो कर दिया. एक होल था पूरा रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल क्या था? एक पूरा होल था. उसको मैम ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? उसको मैम ने डिवाइड किया 4 पार्ट में. तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हुआ? डिनोमिनेटर हमारा हुआ 4. क्यों हुआ 4? क्योंकि मैम ने बताया आपको कि जितने पार्ट्स में हम एक होल को डिवाइड करते हैं वही कहलाता है हमारा क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है. तो हम कितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया बेटा? वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो हम क्या करेंगे? एक बेस लाइन, वी विल ड्रॉ अ बेस लाइन. देखो एक बेस लाइन खींची. अब बताओ कितने पार्ट्स में? 4. तो 4 कहाँ लिखेंगे हम? डिनोमिनेटर हम कहाँ इंडिकेट करते हैं? वी ऑलवेज राइट डिनोमिनेटर डाउन. सो हियर वी विल राइट 4. अच्छा, तो अब हमें डिनोमिनेटर तो समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर मीन्स एक गिवन होल को हम जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो वो 4 हमने नीचे लिख दिया क्योंकि वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ डिनोमिनेटर. वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ डिनोमिनेटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन. द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट टेकन. अब देखो
एक होल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 4 डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर क्या होगा, इसमें से कितना पार्ट हमने ले लिया। सपोज करो आपके पास ऐसा एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट थी, उसमें उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 डिनोमिनेटर हो गया। एंड नाउ अब उस 4 में से आपने क्या किया, आपने 1 पार्ट अपनी फ्रेंड को दे दिया, 1 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया कि ले लो भाई, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम ले लो। तो आपने 1 पार्ट उसको दे दिया। तो हाँ, न्यूमरेटर क्या होता है, मैम ने क्या बताया, द इक्वल नंबर ऑफ पार्ट टेकन फ्रॉम द होल। द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट टेकन। जितने इक्वल पार्ट हम लेते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, वही हमारा न्यूमरेटर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया, तो हमारा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे, सारे बच्चे समझ गए इस बात को। ठीक है, एक बार ध्यान से इस पिक्चर को देखिए सारे लोग। एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा। तो जितने इक्वल पार्ट्स में बांटा वो क्या बना, जितने इक्वल पार्ट्स में बांटा वो बना हमारा डिनोमिनेटर। एंड नाउ उसमें से जितना पार्ट हमने ले लिया, उसमें से जितना पार्ट हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, वो बना हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, नाउ मैम इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल। ठीक है, चलो, ओके, नाउ दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, सो अब भाई ट्रायंगल था हमारे पास, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, मैड एंगल, व्हाटएवर यू कॉल दैट। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2। तो ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल हमारे पास एज अ होल था, ट्रायंगल हमारे पास एज अ होल था, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2। तो भाई हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा, व्हाट विल बी अवर डिनोमिनेटर, 2। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, तो डिनोमिनेटर विल बी 2। ठीक है, अब उसमें से तुमने क्या किया, उसमें से 1 पार्ट तुमने मम्मा को दे दिया। ठीक है, तो 1 पार्ट जब उसका तुमने मम्मा को दे दिया है ना, तो 1 पार्ट हम शेड कर देंगे, 1 पार्ट हमने मम्मा को दे दिया। अब क्या हुआ भाई, 1 पार्ट मम्मा को देने के बाद हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया। चलो, मैम अब एक और चीज समझाने जा रहे हैं, अब उसको ध्यान से देखना। ठीक है, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ रेक्टेंगुलर फिगर। अब मैंने एक रेक्टेंगुलर फिगर ले लिया, उसको मैम ने कुछ ऐसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, मैम ने उसको क्या किया, कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया। ठीक है, नाउ इसमें कितने पार्ट्स हैं, ये एक होल था, रेक्टेंगल एक होल था। अब इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट्स हैं, देखो जरा ध्यान से, इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, है ना, 4 पार्ट्स आर देयर। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं अब उस रेक्टेंगल में। अब उसमें से आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 3 पार्ट्स आप दे देंगे, 3 पार्ट्स आप दे देंगे किसी को। चलो 3 पार्ट्स आप शेड कर देते हैं, है ना। ठीक है, 1 2 3 पार्ट्स हमने क्या किया, किसी ना किसी को दे दिया। तो अब हमारा यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने थे, हमारे यहाँ पे टोटल पार्ट थे 4। ठीक है, 4 टोटल पार्ट थे।
टोटल पार्ट में जिसमें इस पूरे फिगर को डिवाइड किया गया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो 4 हमारे टोटल पार्ट्स थे। उसमें से 1 2 3 हमने गिव अवे किया, किसी को दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया 3। नाउ वंस अगेन इन दिस क्वेश्चन 1 इज व्हाट न्यूमरेटर, 4 is what denominator. Again in this question 1 is what numerator and 2 is what denominator. Here 3 is numerator and 4 is denominator. शाबाश, very good, अच्छा पढ़ा है ना। तो चलो अब तो हमें ये बात समझ में आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात तो अच्छे से सारे बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज मैम और आपसे पूछते हैं, ठीक है। वन थिंग आई एम गोइंग टू आस्क यू, ओके। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ स्क्वायर, ओके। So count in how many parts this square is divided. काउंट करो सारे बच्चे, कितने पार्ट्स में ये स्क्वायर डिवाइडेड है। चलो सारे बच्चे काउंट करो कितने पार्ट्स में स्क्वायर डिवाइडेड है। स्क्वायर एक होल था, अब उसका कितना पार्ट, स्क्वायर तो एक होल था, अब उसका कितना पार्ट हमने डिवाइड किया है। कितना है 1। चलो मैम विल हेल्प यू, है ना। चलो सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस स्क्वायर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इस स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, इस स्क्वायर को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। अब बड़ी बात क्या है कि 8 क्या है हमारा, 8 है हमारा डिनोमिनेटर, 8 इज अवर डिनोमिनेटर, ठीक है। ओके फाइन। नाउ अब मैंने इसमें से 3 पार्ट शेड कर दिए, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, 3 पार्ट हमने शेड कर दिया, ठीक है, शेड कर दिया। और ये 3 पार्ट हमने दे दिया, हमने इसको 3 पार्ट को टेक अवे कर लिया, निकाल लिया। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, मींस टोटल 8 में से कितने शेडेड पार्ट्स है, टोटल 8 में से कितने शेडेड पार्ट है, काउंट करो 1 2 3। टोटल शेडेड में से 3 पार्ट्स, सॉरी टोटल 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्या है, शेडेड है ना। 3 पार्ट्स को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा 3, why 3? So what is this 3/8 represent? This 3/8 represents fraction of shaded part, fraction of shaded part है ना। What is 3/8 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, जितने पार्ट हमने क्या किए हैं, जितने पार्ट हमने शेड कर दिए हैं, है ना। समझ में आया सबको इतनी बात। ओके किड्स, सो व्हाट वी हैव डन टुडे वी हैव डन denominator, we have understand the concept of numerator and denominator. So tomorrow we will carry on with this only, okay. Tomorrow also we will understand the concept of fraction, and then what you will do, you will solve the exercises with me in our next class, okay. Till then, bye bye.